السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ سب بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے عید باخریت گزر گئی، رمضان بھی گزر گئے، اور عید کا خوشی کا دن تھا وہ بھی گزر گیا، اور تمام مساجد میں، خصوصاً یہاں بیرون ملک میں، خصوصاً پاکستان کی سلامتی اور اس کی بہتری، اس کے لیے ہم نے دعائیں، خصوصی طور پہ دعائیں کی، خانہ کعبہ میں، مدینہ پاک میں، ہر جگہ پہ ہم نے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمارے اس ملک کو بچائے، اور بہت بڑے ایک اجتماع سے دعا میں نے ریکویسٹ کی، وہاں پہ دعا کی گئی کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس پاکستان کے تباہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور ان کو 3 دفعہ کہا کہ پروردگار تیرے ہاتھ میں ہے کہ ان کو ہدایت دے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، اگر ان کے دلوں پہ موریں لگ ہی چکی ہیں، تو پروردگار تو خود اپنی عدالت میں انصاف کرنے والا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیو، آپ یقین کریں کہ ہم جس وقت بھی افطاری کرتے تھے یا سحری کرتے تھے، ہم سب دوست اس چیز کا اظہار کرتے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ملک کے وطن عزیز میں کتنے گھرانے بھوکے ہوں گے، کتنے بچے روٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اور ان کی مائیں، ان کے باپ بے بس آسمان کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی ذات نے یہاں پہ کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کاش اے کاش کہ ہمارے یہ منہ کا لقمہ بھی ان تک پہنچتا، ہم پہنچانے کی کوشش کرتے، لیکن سوائے ہم دعا کے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، البتہ ہم نے خوشی کے موقع پر اور جتنی بھی زکوٰۃ اور فطرانہ تھا، وہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اپیل کی ہے جو بیرون ملک میں اوورسیز پاکستانی ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، اور 80% جو لوگوں نے پاکستان میں اپنے علاقوں میں وہ فطرانہ اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھیجی ہے، اور ہمارے اپنے خصوصی طور پہ اپنے حلقے میں سے تقریباً 90-95% لوگوں نے ان کو پاکستان میں زکوٰۃ، فطرانہ یہ ہم نے وہاں پہ بجایا تاکہ ان کے چولہے جل سکیں جو محروم طبقہ ہے۔ محروم تو خیر ہمارا ملک نہیں ہے، اس میں ہر چیز ہے، لیکن محروم بنایا گیا ہے اس لیے کہ یا اس کو کسی بھی طور پہ اس ملک کو غریب رکھنے کی ایک سازش ہو رہی ہے بین الاقوامی طور پہ، اور وہ سازش میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ الاکار ہیں، ان کے اپنے بینکوں میں بڑی بڑی دولت جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے، وہ کمیشن دے رہی ہیں ان کو، وہاں پہ جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہمارے وطن میں جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جو غریب بھائی ہیں، جو جن کے بچے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو ان کے لیے سوچتے ہیں، ان کے لیے پریشان ہیں، اور ان کے لیے اللہ کے دربار میں ہمیشہ دعا گو ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک اعلان ہوا تھا کہ $25 کروڑ سعودی عرب میں جو زکوٰۃ پاکستان کے حصے میں آئی تھی، زکوٰۃ میں سے پیسے وہ پاکستان کو دی گئی ہے۔ وہ زکوٰۃ کس نے لی، کس میں تقسیم ہوئی، کہاں خرچ ہوئی، وہ نہ تو پاکستان کے عوام کو علم ہے، نہ ہمیں یہ علم ہے کہ وہ زکوٰۃ مجھے تو کم از کم علم ہے کہ وہ کہاں پہ جو ہے بندر بانٹ ہو گئی ہے، ان کی کہاں پہ تقسیم ہو گئی ہے، لیکن اس $25 کروڑ میں سے پاکستان کے کسی بھی غریب کا کوئی $1 بھی، $100 بھی حصہ نہیں بنا، اور وہ پہلے بھی غریب تھے اور آج بھی اس سے زیادہ غریب ہیں، اور جو غربت سے تنگ ہیں، جو قرضہ ادا نہیں کر سکتے،
वो अपना इलाज आसान तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं अपने आप को, बच्चों को बेच रहे हैं, जहर की गोलियां खा रहे हैं, माएं कत्ल कर रही हैं अपने बच्चों को भूख की वजह से। ये याद रखें कि कत्ल करना आसान नहीं है। किसी इंसानी जात को, इंसान को कत्ल करना बहुत मुश्किल काम है। वो कत्ल इसलिए करते हैं या तो अपनी गैरत में फंस के, अपनी गुर्बत की वजह से, या अपनी इंतहाई दुश्मनी की वजह से। ये 3 तरीके हैं जिसमें लोगों की जानें जाया हो रही हैं। और सबसे ज्यादा आजकल जो है वो पाकिस्तान में भूख और इफलास की वजह से माएं बच्चों को कत्ल कर रही हैं। माएं जो है वो जहर के इंजेक्शन, गोलियां, दवाइयां, हर चीज वो दे रही हैं कि अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। तो इसलिए वो अपने साथ उनका भी खात्मा करना चाहती हैं। और ये जितना भी कत्ल हो रहे हैं, ये माशी कत्ल, और ये जितना लोग भूख और इफलास की वजह से कत्ल हो रहे हैं, ये इनके कातिल इनके हुक्मरान हैं। ये अल्लाह ताला का साफ वाज़ा तौर पे अहकामात हैं कि जिस सल्तनत में हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, उसका जिम्मेदार वो होगा। लेकिन उन्हें क्या पता, उन्हें थोड़ा ही मरना है। अरे जनाब, उन्होंने नहीं मरना, उन्होंने यहीं रहना है। मरना है हम लोगों ने, जिनके अंदर खुदा का खौफ होता है, जिनके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी होती है और उनके अंदर खौफ होता है। और वो लोग जो है आखिरत के बारे में सोचते हैं। और जो दौलत के पुजारी हैं वो नहीं सोचते, वो यही सोचते हैं ये जिंदगी है, जितनी है मजे से अय्याशी कर लो, जितना झूठ है बोल लो, पैसा कमा लो, लोगों से पैसा कमा लो, उनको मार दो, टारगेट किलिंग कर दो, बत्ताखोरी के जरिए जो बत्ता नहीं देगा, जुल्म दर जुल्म। ये देखो कि बंदूक की नोक के ऊपर कराची में फितराना मांगा जा रहा है और जो नहीं देता उसको कत्ल कर दिया जाता है। हाल ही में मैंने अपने फेसबुक के ऊपर एक तारीख जो है वो चढ़ाई थी कि जिसमें 118 यूनिट कोई नाजमाबाद साइड की तरफ है जो MQM की है। उन्होंने उसके बाद से पहले बत्ता मांगते रहे, उसके बकौल उसके बाद के बकौल मेरा उनसे राब्ता है। और उसके बच्चे 22 साल को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उन्होंने फितराने की रकम उसको देने से इनकार किया। खाली छीनी जाती है कुर्बानियां। तमाम जितना भी सामान है रिफाई तौर पे लोगों से जबरदस्ती लिया जाता है। एक तकरीर जो लंदन से होती है उसके लिए हर यूनिट, पूरे कराची में यूनिट बने हुए हैं, हर यूनिट का काम है कि उस एरिया के लोगों को, मर्द हो या औरत हो या बच्चे हो, उनको निकाल के उस जलसागाह में पहुंचाना है। अगर वो जो नहीं पहुंचेगा उसको मार दिया जाए या उसके घर जला दिए जाए। ये वाज़ा हुक्म है इस पार्टी की तरफ से, इस तंजीम की तरफ से। मैं अल्लाह की जात से डरता हूं, हक की बात करूंगा। जो लोग पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत का नारा लगाकर, वही लोग लोगों को बत्ता ना देने की वजह से, लोगों को फतराना ना देने की वजह से, उनके जवान बच्चे 22 साल के बच्चे जो गरीबों ने अपनी मेहनत और मजदूरी से कमाकर उनको पढ़ाया लिखाया, जवान किया, और उन्हें एक गोली, 100 रुपए की एक गोली उनके ऊपर काम करके उन्हें मार के आ गई। यही है जमहूरियत पाकिस्तान में। और यह पाकिस्तान की जमहूरियत इसलिए बनी है, चाहे वो हुक्मरान है या कोई तंजीमें हैं। यहां सिर्फ MQM ही नहीं है, यहां पे बहुत सारे लोग और हैं। यहां पे हुक्मरान जो है वो भी बत्ताखोरी में मुलव्वस हैं, परसेंटेज मुकर्रर हैं। बगैर सबूत के मैं बात नहीं करता। अगर ये कहें कि मैंने किसी अखबार से पढ़ा
یہ کہیں کہ میں نے کسی ریڈیو یا ٹی وی کے ذریعے سنا اور میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، کوئی بھی اگر مانگے ثبوت دینے کے لیے آن دا ایئر تیار۔ ارے یار جمہوریت نہ سے، جمہوریت پہ بلیو مت کرو، اگر نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم انسانیت کا احترام کیا جائے، لیکن وہ پیسوں کی خاطر کوئی احترام نہیں ہے، گولی مار دیتے ہیں اگر ان کی مطالبات پورے نہ ہوں۔ کب تک رہے گا؟ اس دور میں دور تلک کوئی چلا نہیں، تاریخ شاید ہے۔ اور آج اس حکمرانیوں کی وجہ سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بیرون ملک میں ان کی جتنے بھی تعینات کیے ہوئے کرندے سفارت خانوں میں ہوں، قونصل خانوں میں ہوں یا کسی بھی جگہ کے اوپر ہوں، وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، 3 پیس سوٹ پہن کے کام کر رہے ہیں۔ وہی انگریز والا دستور ہے، وہی 3 پیس سوٹ اور ٹائیے پہنے ہوئے ہیں، جبکہ یہاں انگریز، امریکن، برٹش یا دوسری قومیں جتنی ہیں وہ بلینز اور بلینز ڈالر کے مالک ہیں۔ انہیں ہم نے کبھی پرائیویٹ طور پہ جو ہے ٹائی باندھی ہوئی نہیں دیکھی، صرف جین کی قمیض اور جین کی پینٹ دیکھی ہے، ایک ریگولر پینٹ دیکھی، اور پھٹے ہوئے ان کے جو ہے وہ جاگر ہم نے دیکھی۔ یہ ہے قومیں، اور جہاں پہ ہم نے یہ حکمران اپنے سر پہ چڑھائے ہیں وہاں پہ ہمارا اپنا قصور ہے، اس قوم کا قصور ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس پہ میں لعنت بھیجوں نہیں بھیجتا، لیکن افسوس کر سکتا ہوں۔ صد افسوس ہے پاکستان والوں، ایک قوم نہ بن سکے۔ شیعہ سنی تو بن گئے، مسلمان کہلانے کے قابل تو نہیں ہم، مسلمان تو اپنے آپ کو کہلانے کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن ہم پاکستانی اپنے آپ کو نہیں کہلاتے۔ ہم مہاجر، پٹھان، سندھی، بلوچی، پنجابی کہلاتے ہیں، اب تو سرائکی بھی کہلائیں گے، اب تو گلگتی بھی کہلائیں گے، کیونکہ یہاں یہ صوبوں کی تقسیم ہے، یہ علاقائی اور یہ سیاسی تقسیم ہے، اور ہم یہاں پہ مذہبی طور پہ لڑ رہے ہیں، ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھلے رکھنے کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھی، اس نے ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھی۔ ارے ظالموں، یہ سوچو، یہ عقل کی کیوں نہیں ناخن لیتے پاکستان کے لوگوں؟ تمہیں یہ دماغ میں کیوں نہیں سماتی یہ بات کہ جہاں پہ ہم ان چیزوں پہ مذہبی چھوٹے چھوٹے مذہب کے اوپر اختلاف رکھتے ہیں، وہاں یہ لوگ ہمارے ہاتھ کاٹنے کے در پہ ہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں بیرونی ممالک والے، آپ اس طرف کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ملک ہے تو سندھ کارڈ بھی ہوگا، یہ ملک ہے تو بلوچستان کا بھی ہوگا، یہ پشاور کا بھی ہوگا، یہ پنجاب جاگ پنجابی جاگ کی بات ہوگی۔ جب یہی نہیں رہے گا تو کس کے باپ کے سر پہ رکھ کے جاگ پنجابی جاگ کرو گے، یا آپ سندھ کارڈ کسی کے اپنے سر پہ رکھ کے کارڈ رکھ کے سندھ کارڈ استعمال کرو گے یا بلوچستان کا کرو گے؟ بہت ہی افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا کی ذات ان کے اوپر ایسا ظلم نازل فرمائے، اور آئے گا ظلم ان کے اوپر، جنہوں نے آج اس حالت کو ہمارے پاکستان کو پہنچایا۔ نہ اس میں ریسورسز کی کمی، نہ ایگریکلچر کی کمی، نہ ہمارے بجلی کا بحران ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ایک مصنوعی طور پہ پیدا کیا گیا پیسے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ آج بھی ڈیزل کے پیسے دیں تو تمام جنریٹر چلیں گے اور بجلی پیدا ہوگی، جب دیتے نہیں ہیں ان کو بل۔ آج بجلی کا بل سرکاری طور کے اوپر جو بل انہوں نے دینا ہے سرکاری طور پہ، اسمبلیوں کا، ان کے گھروں کا، وہ 152 ارب روپیہ ہے، کوئی بھی نہیں دیتا۔ جب وہ نہیں دیتے تو وہ تنخواہ کہاں سے پوری کریں؟
वो डीजल बाहर से कहां से खरीदे, वो शिप के पैसे कहां से दे? तो जहरी बात है बिजली उनको बंद करनी पड़ेगी। आज मैं दावे से कहता हूं कि सब जाकर उसको कहें कि ये पैसे पूरे, इनके बिल पूरे भी ना दें, उनको 52 अरब रखे, 100 दे, 90 अरब दे, देखता हूं पूरे मुल्क में बिजली आएगी। हम लोग बुनियाद की तरफ नहीं देखते कि इसके पीछे क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कमी क्यों है, ये बुरान क्यों पैदा हो गया है। यही चीजें हैं कि इंजनों की, अगर रेलवे के इंजनों की या जहाज के इंजनों की रिपेयरिंग नहीं होगी, उनकी मेंटेनेंस नहीं होगी, तो ट्रेनें भी खड़ी हो जाएंगी, जहाज भी खड़ी हो जाएंगी। जब मेंटेनेंस के लिए पैसे ना दिए जाएंगे, अगर पैसे दिए जाएंगे तो रास्ते में ही खा लिए जाएंगे, तो क्या होगा फिर? यही हाल होगा और इससे बदतर होगा। और जो मंसूबे अभी बन रहे हैं आइंदा 5 साल के लिए कब्जा करने पर, अगर खुदा ना ख्वास्ता ये दोबारा काबिज हो गए तो फिर ये समझ लो कि दुआ ही पढ़ ली। हम भी आपके लिए दुआ ही पढ़ सकते हैं। ये बात सोचो कि हम बैरून मुल्क में बैठे हुए, अल्लाह का फजल है कि हमने अपनी मेहनत से अपने एक स्टेटस बनाया है, अपनी सारा कुछ अपना आपको सेट कर लिया है, बच्चों को सारा कुछ कर लिया। इसके बावजूद भी हम रात दिन चीख रहे हैं इस मुल्क के लिए, उस मिट्टी के लिए तरस रहे हैं। मैं आज भी जाने के लिए तैयार हूं और मैं जा रहा हूं, आऊंगा पाकिस्तान, चाहे वहां पे गोलियां बरसती हैं, चाहे वहां पे बिजली नहीं है, लेकिन हम अगर बैठ के ये देखते रहे कि हम खुद तो स्टैब्लिश हैं, खुद तो आराम से हैं, तो वो लोग जो है वहां मर रहे हैं, तो इससे बेहतर हमसे जानवर है। जानवर और कुत्ता भी अपने लिए सोचता है, खा लेता है हड्डियां, वो भी अपनी पूंछल से जगह साफ करके बैठ जाते हैं। तो कहो जो लोग अपने लिए सोचते हैं उनमें और जानवर में वो फर्क क्या रह गया है, ये तो सोचें आप। फिर हमारे बैरून मुल्क में पाकिस्तानी जितने भी वसील पाकिस्तानी हैं वो इतनी मुश्किलात में हैं और लीगल तौर पे उनके साथ जुल्म किया जा रहा है और हमारे पाकिस्तानी हुकूमत उसका नोटिस नहीं ले रही। उसकी मिसालें मैं आपको दूं। चाइना से मुसलमान औरत जो रिसेंटली मुसलमान हुई है, उसने पाकिस्तान के लिए वीजे की अप्लाई की है, उससे 1200-1500 डॉलर जो है वो मांगा गया है रिश्वत के तौर पे, फीस के तौर पे, और उसने ये भी कहा कि फीस है ही नहीं है। उसके बावजूद भी उसको हार्ड टाइम दिया गया, उसने वीजा अप्लाई करना ही छोड़ दिया, फिर उसने दोबारा अप्लाई किया किसी के तौर पे, और उसने खुद कहा ऑन द रिकॉर्ड, में आपको उसकी टेप सुना सकता हूं, जो मेरी बात उससे हुई है, वो टेप है मेरे पास। उसने ये कहा कि मैंने फिर आखिर पैसे देने पड़े, मुझे जाने का, पाकिस्तान में जाने का शौक था, मुसलमानों से मिलने का शौक था। एक तरफ गैर मुस्लिम को मुसलमान होने का शौक देखो, मुसलमानों से मिलने का शौक देखो, और वही शौक को आरी से, छुरी से, तलवार से काटने वाले ये राशि, ये हरामी, ये कमीने, ये मिरासी, पता नहीं किस कौम और किस से ये इनका ताल्लुक है। ये जालिम जो है 1200 डॉलर के लिए, 1500 डॉलर के लिए उनको वीजा नहीं देते, और वो लोग कहते हैं कि हम कैसे मुसलमान हो गए हैं इनके साथ। उसके बाद दुबई के केस है मेरे पास। दुबई में जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट हो रहा है, जो सफारत खाना कर रहे हैं, और खासकर बर्मिंघम में जो वीजा सेक्शन वाले जो बदमाशी मचाई हुई है, मुझे वहां से रिपोर्ट मिली, मैं खुद गया बर्मिंघम, अमेरिका से वहां यूके गया, और देखा मैंने जिसकी शिकायत थी उसके ऊपर देखा, एक खुफिया वीडियो बनाई हुई है। जिस वक्त भी वक्त मिला मैं वो पाकिस्तान आकर उसको, अगर ये मीडिया वाले तो सुनते ही नहीं है ना जी, मीडिया वाले तो उन लोगों को बुलाते हैं जो उनके मंजूर नजर है, और फिर कहते हैं हम मीडिया वाले करप्ट नहीं है। वो लुकमान को जरा देखो, उसके साथ औरत जो थी उसको जरा देखो, कौन कहते हैं ये करप्ट नहीं है? ये अपने लोगों को बुलाते हैं। मैंने तो कई दफा चैलेंज किया कि आए मेरे साथ इक्तिसादियात, माहिरीन इक्तिसादियात आए मेरे साथ, माशियात वाले आए मेरे साथ, बैठे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान को और इसको किस तरह से तरक्की दी जाती है और कितने शॉर्ट अरसे में की जाती है, इसके रिसोर्सेज किस तरह से होते हैं, इसकी जो हमारी नफरत है किस तरह से खत्म हो सकती है। हमारे दरमियान हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन ये दिल, ये सीने को खुला रखना पड़ेगा, आलस रखना पड़ेगा,
सच बोलना पड़ेगा, हकूक देने पड़ेंगे, तब जाकर ये सारा कुछ होगा। इस तरह से नहीं होगा कि हम भाई भाई भी कहें और पीछे से उनको काटेंगे, उनको मारेंगे। इस तरह से नहीं होता। कोई जालिम नहीं है जो इस पाकिस्तान और इस्लाम से मुनहरफ हो जाए और उससे किसी साथ ना रहना चाहे। लेकिन जब भूख से मरेंगे, जब उनके हकूक नहीं मिलेंगे, तो वो बगावत तो उठेगी। हमने बंगालियों के साथ क्या किया? 71 से पहले 45 से लेकर 71 तक हम बंगालियों के साथ क्या जुल्म करते रहे। इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल जो तंजीमें उनसे पूछो उस वक्त की, जिस वक्त बांग्लादेश हमसे इलादा हुआ था, 70,000 बंगालन औरत प्रेग्नेंट थी और नाजायज पाकिस्तानियों के हाथों थी। क्या वो मुसलमान नहीं थी? क्या उनकी फरियाद उस्मानों तक नहीं जा सकती थी? ये उस सजा का, उस करनामे का बदला हमें ये मिला। सोचो, मुसलमान भी हो और मुसलमान माओ बहनों के साथ ये कर रही हो। कल तुम्हारी माएं बहनों का क्या हशर हुआ होगा और क्या होगा इन द फ्यूचर में? कभी अपने गिरवान में किसी ने मुंह नहीं डाल के देखा? आज जिन बेगुनाह और बेआसरा और मजलूम लोगों के ऊपर उनको नंगा गमाया जा रहा है, उनके बाल काटे जा रहे हैं, उनके नाक काटे जा रहे हैं। मैंने तो ये इत्तिकाफ में एक ही दुआ की है कि परवरदिगार मुझे एक पावर दे दे, मेरा हाथ इन जालिमों तक पहुंचे जो इन बच्चियों, मां और बहनों की बेइज्जती करते हैं और इनके साथ जुल्म करते हैं। जुल्म करने, इज्तिमाई ज्यादती के बाद उनको कत्ल भी कर देते हैं। आज दिन तक हमने यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के किसी हिस्से में यह नहीं सुना कि किसी 7-8 साल बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया। और हम मुसलमान ये कुछ कर रहे हैं और जिसको हम इस्लाम का किला कह रहे हैं, उसमें ये ज्यादती हो रही है। कौन? या मुसलमानों, या पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों, खुदा और रसूल का वास्ता, इस अकल के नाखन जो है वो लें, सोचें, सुबायत के ऊपर मत जाएं, इन पार्टियों के ऊपर न जाएं, पाकिस्तान का सोचें क्या हो रहा है। अगर आप लोग नहीं सोचेंगे, कौम बन के नहीं उठेंगे, एक आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी दास्तान भी ना होगी। दास्तानों में आप यकीन करें कि दुनिया पूरी आपकी वो जो हिस्ट्री है ना, उसको भी खत्म कर देगी। किसी तारीख में नहीं लिखेगी कि कोई आने वाली नस्ल उसको ना पढ़ ले। जरा सोचो तो सही, आपके पास सब कुछ है, लीडरशिप है, अगर आप उसे चाहें तो। अगर आप हुक्मरानों को चाहें, आज भी इलेक्शन होगा जब 50, जहां 1-1 करोड़ का जो है वो पार्टी फंड लेगी, जिस आदमी से उसका कौमी असेंबली के टिकट के लिए 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड लेगी। क्या वो किसी गरीब को 100 रुपया नहीं दे सकता? भूखे को रोटी नहीं खिला सकता? वो 1 करोड़ रुपया पार्टी फंड देकर वो जब जीत कर आएगा और उसके ऊपर भी 2-3 करोड़ रुपया लगाएगा, तो क्या ख्याल है वो इस मुल्क को नहीं लूटेगा? ये जितने भी नए नए लीडर उठ रहे हैं, ये कहते हैं हम खत्म कर देंगे। मुझे ये बताएं, मैं आ रहा हूं पाकिस्तान में, सबको बुलाऊंगा, मुझे ये बताएं कि एक कौन सा वो अलादीन का चिराग है जो जादू की चिड़ी है, जो रगड़ेंगे सब कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो कौन तो पूछे, उनके पीछे बल्ले बल्ले मत करें। हमने बल्ले बल्ले जो है वो 65 60 साल तक कर चुके हैं। बल्ले बल्ले न करें, उनसे पूछें कि आप आएंगे तो किस तरह से आएंगे। ये रिश्वत जो आप 1-1 करोड़ रुपया लेकर आप उनको टिकट दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, जो 5-5 करोड़ रुपया वो इलेक्शन पे लड़ाएंगे तो लगाएंगे, उसके बाद वो क्या खाली मूली आकर मुसलमान बन के बैठ जाएंगे और कौम का काम करेंगे? यार एक कौम है पाकिस्तानियों, खुदा और रसूल का वास्ता जरा सोचो। हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें दुख हो रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे, हमने कोई ओहदा नहीं लेना, हमने कोई इलेक्शन में नहीं लड़ना, हमने कोई किसी को वजीर नहीं बनना, हम जो कुछ भी हैं हम बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से मुतमिन हैं, मुतमिन भी हैं और हमारी इबादत में, हमारे मजहब में भी कम है, कोई रुकावट नहीं है। हमारी किसी भी मसाजिद में बम नहीं फटा, हमारे किसी भी उसमें
चर्च में या किसी जगह भी वो ये शियों की मसाजिद में वहां पे भी कोई नहीं फटाना, इधर फटाना उधर, हम सब इत्तेफाक से रह रहे हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं। लेकिन एक पाकिस्तान है, उसके अंदर ये तफरके डालने वाले कौन है? हमारी कम्युनिटी जो बाहर है वो परेशान है, जो सबसे आपसे ज्यादा जो है वो दे रही है आप जेर मुबादला, जिसके ऊपर ये याशियां कर रहे हैं, 3-3 सूट 3 पीस सूट पहन के, टाइए पहन के ये मुफ्त जहाजों में घूमते हैं और ऐसे काबिल काबिल वजीर आजम बन रहे हैं। उस फोरमैन को वजीर बना दिया जो 1992 में लाहौर में एक इंडस्ट्री का फोरमैन था। फोरमैन तो आप जानते होंगे ना, फोरमैन, ये फोरमैन था, आज ये वजीर आजम है। ये खोता, ये राजा रंटल जो है, ये आज जो है वजीर आजम है। इस मुल्क की काबिलियत पे आफरी, इस मुल्क के हुक्मरानों की सिलेक्शन पे आफरी। किस किस को कहूं, लेकिन हम तो वो लोग हैं, हम तो वो लोग हैं कि जो हम ये चाहते हैं, ज्यादा ये बातें ज्यादा लंबी हो रही हैं। हम तो यही कहते हैं, हमसे मांगो तो सही, खूने जिगर भी देंगे। अरे हमसे मांगो तो सही, हम खूने जिगर भी देंगे। नाम जहां पाकिस्तान का आएगा तो खुदा की कसम अपना सर भी देंगे। अरे मांगो तो सही, हमारा ये खून, हमारा सर अगर किसी के काम आता है तो हम देने के लिए तैयार। ये इनके ठेके में नहीं है, सारी उम्र यही करते रहेंगे, इनका बाप दादा, इनके भतीजे, इनके पोते यही करते रहेंगे। कि दुनिया में और किसी कोई इंटेलिजेंट लोग नहीं है और नहीं चला सकते। ये पाकिस्तान आकर पब्लिक जलसों में इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत बड़े इंकशाफ करूंगा। और इस वजह के साथ मैं खत्म कर रहा हूं कि मेरा आज ईद का चौथा दिन है यहां पे, और मेरे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह कबूल करे तो मेरा आज भी रोजा है। ईद के बाद 3 दिन के बाद मैंने फिर रोजे शुरू कर दिए, और मैंने अल्लाह से यह वादा किया है कि अगर मुल्क के लिए, सच के लिए जान की बाजी भी देनी पड़ी तो दरेग न करूंगा। ये रोजा रखा हुआ है और इस वक्त 7 बजे हैं शाम के, और अल्लाह को हाजिर नाजर समझ के ये कह रहा हूं, हर तरीके से आखिरी दम तक इस मुल्क की उन करप्ट लोगों के साथ लड़ता रहूंगा, आवाज आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप में हिम्मत है इस मुल्क को बनाने की, अगर आप में जज्बा ईमान है, कहां सो गए मुसलमानों? वो तुम्हारा जज्बा ईमान कहां, वो जज्बे कहां चले गए जिन्होंने 313 में 1000 और 1500 को शिकस्त दी थी? वो तारक बिन जिया कहां मर गए? वो खमीनी आज क्यों नहीं उठ रहे? अगर आपने उठना है, अरे मेरे भाइयों, कुछ तो कर लो अगर उभरना है। अगर कहीं सर से पानी गुजर गया तो कुछ नहीं होगा। कर लो, कुछ कर लो अगर उभरना है। मैं आखिर में यह गुजारिश करूंगा, मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मैं करोड़ों रुपए तो ना लगा सकता हूं और ना लगाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो कुछ भी होगा, पहले तो सबसे पहले मैं उन लोगों को भेजता हूं, अल्लाह कबूल करे, कि जिनके ज़राए आमदन नहीं है, जो लाचार माजूर है। और आइंदा भी ऐसा करता रहूंगा। अभी भी अपनी चादर के मुताबिक भेज रहा हूं। आइंदा भी अगर खुदा ने मुझे दिया तो मैं पहले वो काम करूंगा। इलेक्शन के ऊपर ना लगाऊंगा, मैं लड़ूंगा, एक आवाज जरूर उठाऊंगा जालिमों के खिलाफ, इस जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ। मैं कहता हूं सब कुछ हो सकता है। आपको 3 महीने 4 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि ये लोग यहां पे काम हो रहा है इस मुल्क के लिए। यहां पे कारखाने भी बन सकते हैं, यहां से बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है और बड़े आराम से हो सकता है। सिर्फ एक तरफ के आइन को मनो फन
इस्तेमाल किया जाए और अदलिया को आजाद किया जाए और कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो इंडिपेंडेंट हो। और वो जो इस बात में खुशी है कि जो आज इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन लगे हैं, उनको मैं जाती तौर पे यहाँ अमेरिका में भी मिला हूं, कई दफा बातचीत भी हुई है, सवाल जवाब भी हुए, तो बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है। अल्लाह करे कि वो इफ्तिखार चौधरी की तरह ये भी उनके साथ टक्कर लेने की हिम्मत रखें, तो दो चार अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता और पैदा करेगा तो ये कारवां बन जाएगा। सिर्फ आपसे ये गुजारिश करनी है कि अगर कोई शहर में है मुजाहिद या मुजाहिदीन, इस मुल्क के वतन के मुजाहिदीन, इस वतन से प्यार करने वाले मुजाहिद अगर हैं, तो प्लीज मेरे लिए जलसे का इंतजाम कीजिए। मैं अपने भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि हमारा मुल्क किस तरह से बन सकता है और कितने थोड़े अरसे में बन सकता है। हम इन लोगों के साथ किस तरह मुकाबला कर सकते हैं, इनके दरो दीवार को किस तरह से हम हिला सकते हैं, और किस तरह से एक दयानतदार एक हुकूमत जो है करप्शन को रोक सकती है आकर, और कैसे दयानतदार लोग हैं यहां पे। अगर वो मौका मिले तो मिसाल कायम करके रख देंगे। हजरत उमर फारूक की मिसाल कायम के जमाने की मिसाल कायम करके रखने वाले तैयार लोग, ऐसे ऐसे मुजाहिद मेरे साथ उनका राब्ता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कस्में और हलफ उठाया। उन्होंने कहा है कि हम 2-2 साल तक जरूरत पड़ी तो रोटी खाएंगे, हम कोई उनसे जो है ना तो तनख्वाह लेंगे, ना ही कोई अमरात लेंगे, ना ही उनसे कोई हम प्रोटोकॉल लेंगे, हम मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार है। और इस बैरून मुल्क में लोग मौजूद हैं, वो आपके लिए काम करने के लिए फ्री ऑफ कास्ट काम करने के लिए तैयार है। तो आप क्यों नहीं उससे इस्तेफादा करते, आप क्यों नहीं उन लोगों के लिए रास्ता हमवार करते। मेरी उनसे गुजारिश है जो इस पाकिस्तान के मुखलिस हैं, जो पाकिस्तान को चाहते हैं कि ये पाकिस्तान बने, ये करप्शन से पाक हो, ये बददियानत लोग चले जाएं, ये जुराइम को कंट्रोल हो सके, लोगों को आजादी नसीब हो, जो माओ बहनों की जो है इज्जत की धज्जियों को तार तार ना करे, तो यकीनन है लोग, हम हैं, हम आपको वॉलंटियरली पेश करना चाहते हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी हुकूमत के खजाने से एक पैसा लेने बगैर हम काम करने के लिए तैयार हैं। क्या इस चीज पे आप मुत्तफिक हो सकते हैं, इस चीज पे एग्री हैं? तो प्लीज, मेरी फेसबुक है, यूट्यूब है, ईमेल है, टेलीफोन नंबर सब इसमें है। फेसबुक का मेरा इकबाल जदून, सीधा, कोई डाट कोई कामा नहीं है, इकबाल जदून टाइप कीजिए, फेसबुक पे आइए, अपना फीडबैक दीजिए, राब्ता कीजिए। उधर आपको टेलीफोन नंबर भी मिलेगा, फैक्स भी मिलेगी, ईमेल भी मिलेगा, तमाम राब्ते वहां पे मिलेंगे। अगर आप लोग इस चीज पे एग्री हैं तो हम तैयार हैं सबसे आगे, आग में, दलदल में, खाई में, बारिश में, पानी में, गोलियों में हम आगे खड़े होंगे। मौत एक ही दफा आनी है, मरे तो किसी काज के लिए मरे ना, मरना तो है ही है। ये तो करे ना कि किसी की आने वाली नस्ल को लिए तो कुछ दे ना कुर्बानी, जिंदगी वो है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत दे कि हम जालिमों का मुकाबला कर सके। हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है जाती, मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा वो दुश्मन है जो मुल्क का दुश्मन है, मेरा वो दुश्मन है जो मुल्क को की हद जो है वो जड़ें खोखली कर रहा है, मेरा वो दुश्मन है जो इस मुल्क को तबाह कर रहा है, मेरा वो दुश्मन है जो हमारा पूरे दुनिया में इमेज खराब कर रहा है। दुआ कीजिए, नफल 2-2 रकात नफल पढ़िए, अल्लाह के हाथ दुआ कीजिए और खुदारा ये सब कुछ छोड़कर अल्लाह के हाथ दरबार में हाजिरी दें।
यकीनन आपको वहां से फलाह मिलेगी, आपको वहां से जो है आपको सुकून मिलेगा, आपकी मुश्किलातें आसान होंगी, आप मान लें। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को, हमारी माँ बहनों को, हमारे बच्चों को हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।